Good morning, dear students. I am Meenakshi Chaube from Government Girls College, Betul. I am so glad to find once again this pleasant opportunity to be with you and to discuss with you this interesting topic, tenses. Dear students, I think you might have heard somewhere or have read somewhere that Einstein says that it's the supreme art of a teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. Students, to awaken joy in teaching literature is an easy task, but to awaken joy in students while teaching grammar is really a challenging task. And I think you might have heard that saying, to be simple is to be very difficult. So besides other objectives of my class, I have taken these two challenges to be the objectives of my class. First, to bring to you the rules of grammar in an interesting way and to make my class as interesting as possible. Students, whenever we start learning any lesson or a topic, the first question that arises in our mind is related to the origin of the word or the concept. So the first question that arises in our mind when we start learning tense is from where the word tense has come. So students, the word tense comes from the Latin word tempus, meaning time. And the second question arises is related to the meaning of that term. So what's the meaning of the word tense? So tense is the form of a verb which shows the time and the state of an action. As you know, tenses are of three kinds. The first is present tense, the second one the past tense, and the third one the future tense. And these three tenses are further divided into four parts. The present tense has the present indefinite, present continuous, present perfect, and the present perfect continuous, as you know. And the past tense also has the past indefinite, past progressive, or past continuous, the past perfect, and the past perfect continuous. And in the similar way, we have the future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and the future perfect continuous tense. So I have divided my lecture into three parts. In the first part, I would be dealing with the construction of sentences in various tenses. In the second part, I would be dealing with the situations where we can use these tenses. And in the third part, I would be asking some questions from you. And similarly, I would be asking some questions from your side and expecting some questions from you also. So let us begin with the first part of my lecture. That is regarding the construction of sentences in the tenses. So here you find on your screen the present simple tense or the present indefinite tense. You find here some examples of present indefinite tense. We have here the first sentence, he sings a song. Students, as you see here, that S is added to the verb sing here. And this S is not added to other words or other words. In the second sentence, we have they sing a song. In the third sentence, you have you sing a song. Next, I sing a song. And last, we sing a song. You find S added to only one verb in the beginning of the sentence. In the first sentence, he sings a song. So what's the rule behind this? So the rule is that if the subject is third person singular, we add S or ES to the verb. And if the subject is other than third person singular, we do not add S or ES to the verb. So you find in the second sentence, they sing a song, we have not added S to the verb sing. Similarly, in the third sentence, you that belongs to second person subject, we have not added S here. And the next sentence, I sing a song, I belongs to first person singular. So here also we have not added S to the verb sing. In the last sentence, we sing a song, we belongs to
first person plural subject, so we have not added s to the verb sing that is used here. So students, you find the very important rule of present indefinite tense is that if the subject belongs to third person singular, we add s or es to the base verb. And if we have to convert these sentences into negative, students, what should we do? We will have to add do not or does not in the sentences. So where to use do and where to use does? For example, in first sentence, he sings a song. If this sentence is to be converted into negative, we will use here does not. The rule is the same. If the subject is third person singular, we will add does not, and if the subject is other than third person singular, we will use do not in order to make that sentence negative. Or for interrogative also we use do or does. So one important rule, the students, that you should keep in mind is that s or es will be added to the verb if the subject is third person singular. And now we come to next slide. The past indefinite tense. Here you have some examples of past indefinite tense. The first sentence is he sang a song yesterday. What do you find here? That we have used second person or second form of the verb sing. He sang a song, sang is the second form of verb sing. The past indefinite tense is the only tense, students, where we use second form. And in second sentence you find they sang a song, next you sang a song, I sang a song, and the last sentence is we sang a song yesterday. So whether the subject belongs to first person, second person or third person, with all the subjects, second form of verb will be used. And if we have to make these sentences negative, what are the helping verbs which will be used? Helping verb is did, or for making it negative, we will use did not. And it is easier than the present simple tense, because there we had to think where to use do not and where to use do not or does not, and here we have only did not with us for making it negative. And next sentence is the future indefinite. And examples are you will sing a song tomorrow, they will sing a song tomorrow, you will sing a song tomorrow, I shall sing a song tomorrow, and we shall sing a song tomorrow. As you find here, students, that the helping verbs will or shall is used here. Either will is used or shall is used. The question arises where to use will and where to use shall. Students, if the subject belongs to first person, that is I or we shall use shall there. And if the subject belongs to other subjects than first person, we shall use will there. So it's very easy rule to remember that if the subject belongs to first person, that is I or we, shall will be used. And if the subject belongs to second person, that is you, or third person, that is he, she, it, they, will be used in future indefinite tense. And for making it negative, the sentence will be he will not sing a song, they will not sing a song, you will not sing a song, I shall not sing a song, and we shall not sing a song tomorrow. Now we come to the continuous tenses. You find here some examples of students present continuous tenses. Tense, for example, first one is he is singing a song, they are singing a song, you are singing a song, I am singing a song, and we are singing a song. So students, as you find here, helping verb is, am, are used in present continuous tense. So where to use is, where to use are, and where to use am. Students, if the subject is third person singular, for example, he is used here, and are is used with third person plural and second person plural, and am is used with I, and are is used with
first person plural. So the general rule is will be used if the subject is singular and are if the subject is plural, and with I, am will be used. And if you have to make these sentences negative, it's very simple. First one will be he is not singing a song. Second one, they are not singing a song. Again, next one, you are not singing a song. Next, I am not singing a song. And next, we are not singing a song. So you have seen here that in present continuous tense, students, helping verb is, am, are used, and ing is added to the verb. So whenever the subject is continuous, whether it is present continuous, past continuous, or future continuous, you will have to add ing to the verb. Now we come to past continuous tense. As I have mentioned, that ing will be added to the verb whenever the verb is continuous. So you find here in past continuous tense, he was singing a song yesterday. They were singing a song yesterday. You were singing a song yesterday. I was singing a song yesterday. And we were singing a song yesterday. These are some of the examples of past continuous tense. Students, what are the helping verbs that we use here? You find here that was or were is used. Was is used with third person singular subject as well as singular subject. Or we can say that in all the singular subject we use was, and were is used with plural subjects. That's why they being third person plural, were is used here. And you being a plural subject, were is used. I being singular, was is used here. And we being plural, were is used here. And if we have to make these sentences negative, it's very simple. Only not will be added here. So he was not singing a song yesterday. They were not singing a song yesterday. You were not singing a song yesterday. I was not singing a song yesterday. And we were not singing a song yesterday. Now we come to future continuous tense. Here again you find ing added to the verb. Here you find examples here. He will be singing a song tomorrow. Next word is they will be singing a song tomorrow. You will be singing a song tomorrow. I shall be singing a song tomorrow. And we shall be singing a song tomorrow. So here what are the helping verbs that are used here? Will be or shall be are the helping verbs which are used in future continuous tense. And where to use will be and where to use shall be. Students, if the subject belongs to first person, that is I or we, shall will be used. And if the subject belongs to any other subject, any other person than first person, will be used. Next, we come to another tense, that is present perfect tense. As you find here, he has sung a song. These are some examples. They have sung a song. You have sung a song. I have sung a song. And we have sung a song. In these sentences, you find, students, that helping verb has or have is used. If the subject is third person singular, has is used. If the subject is other than third person singular, have is used. And one more thing you will note here, that in perfect tense, third person of a third form of verb is used. As you find here, sung is the third form of verb sing. Next we come to the past perfect tense. For example, he had sung a song, they had sung a song, you had sung a song, I had sung a song, and we had sung a song. What is the helping verb that is used here? Students, you find that had is the helping verb that is used. If the subject belongs to any person, first person, second person, third person, had is the helping verb that will be used with in past perfect tense. And future perfect tense, you have some examples here. He will have sung a song, they will have sung a song, you will have sung a song, I shall have sung a song, and we shall have sung a song. So what are the helping verbs that are used in future perfect tense, students? Will have,
or shall have are the helping verbs that are used in future perfect tense, and third form of verb is used here. And again the rule is same. If the subject belongs to first person, that is I or shall have will be used, and if the subject belongs to any other person than first person, will have will be used, and third form of verb will be used in future perfect tense. Now we come to the present perfect continuous tense. Students, as I have mentioned, that whenever the subject is continuous, ing will be added to the verb. So you find here ing added to the verb sing. And when the subject is perfect, has is used. And if the sentence is in present perfect continuous, has been plus ing added to the verb will be used. So you find some examples of present perfect continuous tense on your screen. First one is he has been singing a song for 2 hours. They have been singing a song for 2 hours. You have been singing a song for 2 hours. I have been singing a song for 2 hours. And we have been singing a song for 2 hours. Now, as you know, or as you have seen here, has been or have been used. So has been is used with third person singular subject, and with other subjects have been is used, and ing is added to the verb here. Now we come to past perfect continuous tense. For example, you have he had been singing a song for 2 hours. They had been singing a song for 2 hours. And what do you find here? What are the helping verbs that have been used here? You find that had been and ing added to the verb is used here. So with every subject, whether the subject belongs to any person, we use had been and we add ing to the verb. And other examples are, you had been singing a song for 2 hours, I had been singing a song for 2 hours, and we had been singing a song for 2 hours. And now we come to future perfect continuous tense, students. The first example is, he will have been singing a song for 2 hours. So what are the helping verbs that are used here? You find here that will have been and shall have been used here, and ing is added to the verb. If the subject is third person singular, or I should say if the subject belongs to first person, that is I or we, shall have been will be used, and with other subjects, means if the subjects are related to second person or third person, will have been used and ing will be added to the verb. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने आपसे ये शुरू में वादा किया था कि हम आपके सामने इन नियमों को बहुत ही आसान तरीके से लाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है. अभी तक जो भी आपने एग्जाम्पल्स देखे उसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस चार्ट के माध्यम से. आप यहाँ देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में एस या ईएस का प्रयोग है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो डू डज का. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इसको जल्दी से नोट भी कर सकते हैं. पास्ट सिंपल टेंस अगर होगा तो उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की प्रयोग करेंगे, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा था. और अगर नेगेटिव में हमें सेंटेंस बनाना होगा पास्ट सिंपल टेंस में, तो उसमें डिड का प्रयोग होता है. आप देखिए फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में विल या शैल का प्रयोग होता है. अभी हमने जाना था कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसमें शैल या विल का प्रयोग होता है, और अगर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो विल का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग होती है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि इज, एम, आर में से किसी का प्रयोग होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं कि वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं कि विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं. परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख रहे हैं कि हैज, हैव का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रयोग होता है. पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फ्यूचर परफेक्ट में आप देख रहे हैं विल हैव, शैल हैव या थर्ड फॉर्म ऑफ द, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है.
नीचे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे हैज बीन, हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। यहाँ कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको ध्यान से याद रखनी चाहिए। बच्चे इसमें आप देखिए कि कंटिन्यूअस टेंस जब भी है, सिंपल जो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। और अगर परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैज, हैव देख रहे हैं आप प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड का प्रयोग और फ्यूचर में विल हैव का प्रयोग, मतलब हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में जरूर रहेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आप देखें कि चूंकि परफेक्ट में हमेशा हैज या हैव और हैड का प्रयोग करना है और कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, तो हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें तीनों में ही हैज, हैव, हैड परफेक्ट है इसलिए इनका प्रयोग देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यूअस है इसलिए हमेशा हमको इसमें तीनों ही जगहों पर आईएनजी का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बच्चों, ये हमने एक चार्ट के रूप में आपको सामने प्रस्तुत किया जिससे कि आप उसको ठीक से समझ सकें कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाई जाती है। अब जैसे कि हमने कहा था कि मैंने अपने लेक्चर को दो भागों में, पहले तो पढ़ाने के दो ही भागों में विभक्त करके रखा है। इसमें पहले पार्ट में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस बताया। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कहाँ हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कौन सी परिस्थितियों में करते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए आप पहले, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस एंड एक्शंस रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वहां होता है जहां हम आदतन किए जाने वाले कार्यों को व्यक्त करते हैं या फिर उन कार्यों को व्यक्त करते हैं जो कि नियमित अंतराल पर रिपीट किए जाते हैं। और देख रहे हैं आप, ऑफन यूज्ड विद एडवर्ब, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, डेली, इन एडवर्ब्स का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देखें, पहला सेंटेंस, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली एंड आई रीड द गीता डेली। आप देख रहे हैं इसमें ज्यादातर में डेली और रेगुलरली इन एडवर्ब्स का प्रयोग है और ये कार्य आदतन किए जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इन कार्यों को बार बार नियमित अंतराल पे रिपीट किया जाता है। फिर दूसरी जगह कहाँ हम करते हैं प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, द गैंगेस राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ इस सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्रीज कंट्रोल एयर पोल्यूशन। यहाँ भी रिवर्सल फैक्ट को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ भी आप देख रहे हैं राइजेस यानी कि एस लगाया हुआ है हमने वर्ब के साथ में, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर आप देखिए और कौन सी परिस्थितियां बच्चों जहाँ के प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग यहाँ देखिए, ये घटना भूतकाल की है। एज सून एज राम पुट्स हिज फूट ऑन द रॉक इट टर्न्स इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। जैसे ही राम अपने कदम अपने चरण शिला पर रखते हैं, वो एक
अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एज सून एज सीता टेक्स द रिंग इन हर हैंड शी एट वंस रिकॉग्नाइजेज इट। जैसे ही सीता अपने हाथ में रिंग लेती हैं, मुद्रिका लेती हैं, वो उसको तुरंत पहचान देती हैं। ये भी भूतकाल की घटना है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो वर्ब टेक है उसमें एस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा कौन सी परिस्थितियां हैं जहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं? जैसे टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, किसी उदाहरण को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हु नोज दैट हिज विजडम इज नथिंग। दिस इज अ कोटेशन एंड इट्स रिटन बाय सोक्रेटिस। सुकरात कहते हैं कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ये जानता है कि उसका ज्ञान या उसकी बुद्धिमत्ता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कोटेशन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है। इसीलिए आप देख रहे हैं सोक्रेटिस सेज में एस का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर। फिर और एग्जाम्पल है, द महर्षि सेज, ओ गॉडेस सरस्वती, हाउ वंडरफुल योर ट्रेजर इज, इट इंक्रीजेस इफ स्पेंट एंड डिक्रीजेस इफ स्टोर्ड। आपने ये संस्कृत में श्लोक पढ़ा होगा कि अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, वे तो वृद्धि मायाति एंड क्षय मायाति और क्षय मायाति संचयात। तो इसमें आप देख रहे हैं महर्षि सेज, यहाँ सेज से में एस का प्रयोग किया हुआ है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक उदाहरण आपने देखा। और कौन सी परिस्थितियां हैं जहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट और एक्शन दैट्स पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम, प्लान एंड अरेंजमेंट। भविष्य काल के किसी ऐसे इवेंट को, घटना को या फिर कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि किसी फिक्स प्रोग्राम, प्लान या फिर अरेंजमेंट का हिस्सा हो। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock एंड द कॉलेज रीओपन्स ऑन 1st of July। तो ये जो मैच स्टार्ट होगा 9 बजे, ये पहले से प्रोग्राम जो निश्चित है उसका भाग है। कॉलेज 1 जुलाई को खुलेगा, ये भी पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है उसका भाग है। तो इस तरह किसी फिक्स प्रोग्राम को, प्लान को, अरेंजमेंट को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। इसमें पहला जिसका प्रयोग है, टू इंडिकेट सम एक्टिविटी और इवेंट हैविंग टेकन प्लेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में किसी निश्चित समय या निश्चित अवधि पर संपन्न हुआ हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आई वेंट टू विश्वनाथ टेम्पल लास्ट मंडे। मैं पिछले सोमवार को विश्वनाथ मंदिर गई थी। तो ये कार्य भूतकाल में हुआ। तो भूतकाल के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट मंडे, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। फिर आप देखें दूसरा एग्जाम्पल, आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द लास्ट एग्जामिनेशंस। पिछले एग्जामिनेशन में मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। ये भी भूतकाल में जो कार्य हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए आपने देखा यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग है। फिर और कौन सी परिस्थितियां हैं बच्चों जहां पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हो सकता है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट टाइम्स। भूतकाल में आदतन किए जाने वाले कार्यों को या फिर नियमित किए जाने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी भूतकाल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ही नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ, ही वेंट टू द टेम्पल एवरी डे। और आप कैसे पहचान रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है। आप देख रहे हैं टोल्ड है टेल की सेकेंड फॉर्म, और वेंट का प्रयोग है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन कार्यों को या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि भविष्य में किसी समय पर घटित होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, आई शैल फिनिश माई वर्क टुमारो, आई विल गो इन हाफ एन आवर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने बताया था शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में, तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए उसका शैल का प्रयोग है, और विल का प्रयोग दूसरे जो पर्सन के सब्जेक्ट हैं, ही थर्ड पर्सन है, वहां पर यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि विल का प्रयोग है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
अब अभी हमने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फिर शैल का प्रयोग होता है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं बच्चों जहाँ की ये जो नियम है उसका बिल्कुल उलट हो जाता है। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग ना होकर विल का हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हमें कमांड आदेश अगर हम दे रहे हैं, कोई धमकी थ्रेट देख रहे हैं, विलिंगनेस इच्छा हमारी है, प्रॉमिस वादा है, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति है, इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए हम, जैसे आप देख रहे हैं, यू के साथ में विल के प्रयोग की जगह शैल का प्रयोग हो गया, आई के साथ शैल की जगह विल का प्रयोग हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस वहां पर बने हैं। यू शैल नॉट स्टील, you shall not be punished for that, I will come with you, I'll try to do better next time and I will succeed in this attempt। तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होने के बाद भी शैल की जगह पर विल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्त हो रहा है और दूसरे वाक्यों में कमांड, थ्रेट, विलिंगनेस, प्रॉमिस इनका बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर विल का प्रयोग था उसकी जगह पर शैल का प्रयोग हो गया और शैल की जगह पर विल का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिए यहाँ पर, फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि वर्तमान में चल रहा हो, जैसे कि आई एम स्पीकिंग। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई एम स्पीकिंग, यू आर सिटिंग इन द वर्चुअल क्लासरूम एंड यू आर लिसनिंग टू मी। ये कार्य वर्तमान में जारी हैं, तो इनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस का हम जब भी प्रयोग करते हैं तो उसमें वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ जितने भी वर्ब बच्चों आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे स्पीक है, चाहे सिट है, लिसन है, सब में आप देखते हैं कि आईएनजी का प्रयोग है। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि आपको मालूम है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको इज एम आर का प्रयोग देखने को मिल रहा है। फिर और कौन सी परिस्थिति है जहाँ के हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसे अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि जब हम बात कर रहे हैं उस समय न भी हो रहा हो। जैसे आई एम रीडिंग द रामचरितमानस दीज डेज, इन दिनों मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। जिस समय आपसे बात हो रही है उस समय नहीं पढ़ रही, परंतु इन दिनों मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग देखा। माय फादर इज राइटिंग अ बुक, मेरे पिता एक किताब लिख रहे हैं। तो यहाँ आपने एक ऐसे कार्य को देखा जो कि बोलते समय में न भी हो रहा हो, लेकिन वो घटित हो रहा है इन दिनों। फिर फॉर अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन और जनरल हैबिट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, बार बार रिपीट किए जाने वाले उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए या फिर जनरल हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए जिससे कि असहमति या फिर क्रिटिसिज्म का भाव व्यक्त हो रहा हो। जैसे कि ही इज ऑल द टाइम बोस्टिंग ऑफ हर ओन नॉलेज, वह हर समय अपनी नॉलेज की शेखी बघाड़ती रहती है। हिज फ्रेंड्स आर ऑलवेज मिसबिहेविंग, उसके फ्रेंड्स हमेशा मिसबिहेव करते रहते हैं। इन वाक्यों में आप देखते हैं कि इसमें वक्ता की असहमति या फिर आलोचना के भाव व्यक्त हो रहे हैं, मतलब वक्ता को अच्छा नहीं लग रहा ये सब चीजें। और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। अब लास्ट हम देखते हैं इसमें और कौन सा प्रयोग है। फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि निर्धारित किया जा चुका है कि वो भविष्य में होने वाला है। जैसे आप देखिए, आई एम गोइंग टू एंगेज इन अनदर क्लास टुमारो, कल मैं दूसरी क्लास लगाने वाली हूँ। माय मदर इज अराइविंग टुमारो, मेरी माँ कल आने वाली हैं। कार्य भविष्य में होगा लेकिन वो पहले ही अरेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रेफर्स टू सम एक्टिविटी इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी था। जैसे आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल लास्ट ईयर, पिछले साल मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी। द गर्ल वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, कल लड़की किताब पढ़ रही थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख रहे हैं आप, ग्रीन इंक से जो लिखा हुआ है इसमें पास्ट में ये कार्य दिखाई पड़ रहा है। पास्ट में कार्य हुआ है, भूतकाल में कार्य जारी रहा था या हो रहा था, इसलिए यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग है। फिर एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, भूतकाल में किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जब
दूसरा कार्य भी होता है। एक कार्य चल रहा है और साथ में दूसरा काम भी हुआ, जैसे कि द बस वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज व्हेन सडनली एन ओल्ड मैन केम इन फ्रंट ऑफ द बस। बस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, तभी एक व्यक्ति बस के सामने आ गया। ओल्ड मैन आ गया, वृद्ध व्यक्ति आ गया। आई वॉज लर्निंग माई लेसन व्हेन माई फ्रेंड केम। मैं अपना पाठ याद कर रही थी, तभी मेरा फ्रेंड आया। आगे हम देखें, टू और मोर एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। एक या एक से अधिक कार्य अगर एक साथ में हो रहे हो, उन्हें व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं, व्हाइल आई वाज टीचिंग इन द क्लासरूम, टू स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच वर टॉकिंग टू ईच अदर। जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रही थी, ये जो लास्ट बेंच पर बैठे थे वो आपस में बात कर रहे थे। तो दो कार्य इसमें बच्चों साथ साथ घटित हो रहे हैं। पहला पढ़ाने का कार्य हो रहा है और दूसरा दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाइल सरिता वॉज रीडिंग राजन वॉज प्लेइंग। जब सरिता पढ़ रही थी, राजन खेल रहा था। तो दो कार्य यहाँ पर भूतकाल में साथ साथ घटित हो रहे हैं, जैसे कि व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। फिर हम बात करेंगे आगे बच्चे कि कौन सी परिस्थितियां हैं जहां की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन और इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोग्रेस एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भविष्य में जिसके घटित होने की संभावना है, जैसे आई शैल बी टीचिंग माई स्टूडेंट एट 7 in the morning। सुबह 7 बजे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होंगी, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होंगी। भविष्य काल में कोई कार्य चल रहा होगा, जारी रहेगा, उसे व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब के साथ में आईएनजी है और आई के साथ में शैल बी का प्रयोग आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर फॉर एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम। भविष्य में किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि प्लान्ड है या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में जिनको होना ही है, जैसे ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंडे, अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट विल बी अराइविंग इन जुलाई। इसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बच्चों बात की इंडेफिनिट टेंसेस की और कंटिन्यूअस टेंसेस की। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस पर की। यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सी परिस्थिति है बच्चों जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ देखें, टू इंडिकेट एक्टिविटीज कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट विद जस्ट। तत्काल भूतकाल में संपन्न किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट। मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट लिया है। कार्य थोड़े समय पहले जब खत्म हो और उसके साथ में जस्ट का प्रयोग हो, और हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में ये जस्ट का प्रयोग ना भी हो तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसको और आगे देखते हैं, जैसे टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन विद करंट रेलिवेंस और हुज रिजल्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट एक्शन को व्यक्त करने के लिए जिसका वर्तमान में जिसकी प्रासंगिकता है, जिसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है, पास्ट। यहाँ हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है, जैसे आई हैव लॉस्ट माई पर्स। मैंने अपना पर्स खो दिया है और इसके वर्तमान में क्या प्रभाव हो सकता है, बहुत सारे प्रभावों में, जैसे कि आई एम अनेबल टू बाय द बुक। अब मेरा पर्स खो गया है तो मैं किताब नहीं खरीद सकती। जैसे ही हैज फाउंड अ जॉब, उसको एक जॉब मिल गया है, तब उसको अपने करियर की जरूरत नहीं है। तो निकट भूतकाल में किए गए किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसका कि वर्तमान में प्रभाव हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब हम आगे देखेंगे, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसका कि समय का उल्लेख नहीं है, जैसे आई हैव रेड द श्रीमद् भगवत गीता। मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, इसमें समय का उल्लेख नहीं है और इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे भूतकाल का कार्य है, उसमें समय का उल्लेख नहीं है। बच्चे, अगर समय का उल्लेख होता और हम ये कहते कि मैंने 2009 में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी थी, तो हम यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते और सेंटेंस बनता आई रेड द श्रीमद् भगवत गीता इन 2009। जब समय का उल्लेख नहीं है तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन इन द पास्ट। भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले
कार्य जो संपन्न होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड गॉन। जिस समय तक डॉक्टर आए तब तक में पेशेंट जा चुका था। तो दो कार्य इसमें हो रहे हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा पेशेंट का जाना। तो जो कार्य पहले हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट हैड गॉन, पहले ही पेशेंट जा चुका है। और बाद में कौन सा कार्य हुआ है, डॉक्टर का आना। तो बाद वाले कार्य में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग आप देखें, डॉक्टर अराइव्ड। तो पास्ट के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में ही किसी दूसरे कार्य के पूर्व संपन्न हुआ हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। इससे पहले हमने देखा था कि भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि किसी दूसरे कार्य के पहले हुआ हो, और अब हम देख रहे हैं भूतकाल के एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि एक निश्चित समय के पहले हुआ हो। जैसे आई हैड रिटन माई आर्टिकल बाय 10 o'clock, 10 बजे तक मैंने अपना आर्टिकल 10 बजे तक लिख चुकी थी। तो भूतकाल का एक समय है 10 बजे, उसके पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, आप देख रहे हैं हैड का प्रयोग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन वाक्यों को, उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो जो भविष्य में एक निश्चित समय के पूर्व कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जैसे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आशुतोष विल हैव कंप्लीटेड हिज बीटेक, अगले साल के अंत तक आशुतोष अपना बीटेक कंप्लीट कर लेगा। तो एक भविष्य काल में एक निश्चित समय है, उसके पहले कार्य संपन्न हो जाएगा। तो भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पूर्व जो कार्य संपन्न हो रहा हो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन इन फ्यूचर। यहाँ भी आप देखें कि भविष्य काल में किसी निश्चित समय के पूर्व कार्य संपन्न हुआ हो या फिर दूसरे कार्य के पूर्व कार्य संपन्न हुआ हो, वहां भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यू विल हैव रीच कॉलेज बिफोर द बेल रिंग्स, घंटी बजने के पहले आप कॉलेज पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ जब घंटी बजेगी भविष्य में, उसके पहले आप कॉलेज पहुंच चुकेंगे। तो भविष्य काल के किसी घटना के पहले, किसी कार्य के पहले जो दूसरा कार्य संपन्न होता है भविष्य में ही, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लास्ट इसमें आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप देखें, फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है। जैसे कि ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसमें पढ़ाई 5 घंटे पहले शुरू हुई और वर्तमान में भी चल रही है। फिर देखेंगे, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिमिलर कंडीशंस है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में वर्तमान और भूतकाल का ही अंतर है। जैसे यहाँ देखें, when Dr. Sharma left her college in 2010, he had been teaching here for 5 years. जब डॉक्टर शर्मा ने हमारे कॉलेज को 2010 में छोड़ा तो यहाँ पर 5 साल से पढ़ा रहे थे। तो भूतकाल में किसी निश्चित समय के पूर्व कोई कार्य प्रारंभ हुआ और उस निश्चित समय तक जारी रहा। जैसे 2000 पहले से पढ़ाना शुरू किया और 2010 तक वह कार्य जारी रहा। और एग्जाम्पल, when the new principal arrived in 2013, the earlier one had been working here for 10 years. जब नए प्रिंसिपल 2013 में आए तो पहले यहाँ पर 10 साल से कार्य कर रहे थे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं भूतकाल का एक 2013 का जो समय है उसके पहले कार्य प्रारंभ हुआ और 2013 तक जारी रहा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। It's used for action that will be in progress over a period of time leading up to a certain time in future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग भविष्य के एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि भविष्य में एक निश्चित समय से पूर्व प्रारंभ होकर उस समय तक जारी रहेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, by April 2015, I shall have been working in higher education department for 21 years. अप्रैल 2015 को मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने साल, 21 ईयर से पढ़ा रही होंगी। तो भविष्य काल में एक निश्चित समय है
उससे पहले बहुत पहले कार्य प्रारंभ हो चुका है और भविष्य काल के उस निश्चित समय तक कार्य जारी रहेगा। तो यहाँ आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग देखा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाय टुमारो मॉर्निंग आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 8 hours। कल सुबह मैं अपने लेसन को 8 घंटे से पढ़ रही होंगी। तो भविष्य में एक निश्चित समय है, उससे पहले कार्य प्रारंभ होगा और उस समय तक जारी रहेगा। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। एक बार हम लोग फिर से अंत में इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं और कम से कम कंस्ट्रक्शन जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, पहले जो तीनों सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको वो इंडेफिनिट के हैं। ही प्लेज, पास्ट इंडेफिनिट ही प्लेड एंड फ्यूचर इंडेफिनिट ही विल प्ले। क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल है वहाँ वर्ब के साथ में एस लगा है और पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन थर्ड सेंटेंस यू फाइंड विल, यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग होता है फ्यूचर सिंपल में, जैसे आपको मालूम ही है। फिर हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज प्लेइंग सेंटेंस है। आप याद करिए कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं कि वाज प्लेइंग, यहाँ पर वर या वॉज का प्रयोग होता है और वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं ही विल बी प्लेइंग, जिसमें आप विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है और वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है। बार बार बच्चों हम एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। फिर परफेक्ट में आप देख रहे हैं जैसे ही हैज प्लेड, ही हैड प्लेड, ही विल हैव प्लेड, हमेशा आप देख रहे हैं कि हैज या हैव का या हैड का प्रयोग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप क्या देखते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप देख रहे हैं कि हैज बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट में हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ा हुआ है इसलिए बच्चों वहाँ पे आपको आईएनजी का प्रयोग दिख रहा है और क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड है इसलिए विल का प्रयोग है। परफेक्ट है इसलिए हैज, हैव, हैड का प्रयोग यहाँ पर आपको बच्चों देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस और कुछ हद तक वो परिस्थितियां जहाँ की इसका प्रयोग होता है आपने देखा समझा होगा। और चूंकि बच्चों टेंस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको इतने 45 मिनट्स में लेना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब इसीलिए जानने के लिए कि आप कितना समझ सके हैं मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। हाँ, जैसे आप देखें बच्चों, पहला प्रश्न आप में से मैं जानना चाहूंगी, कोई बता सके तो, विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के प्रयोग जब हम करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज, हैव, डू, डज, विल, शैल और वॉज, इन वॉज, वर, इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है बच्चों जो यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों, हाँ जी बच्चों, कौन बताना चाहेगा? मैम, हाँ जी बताइए बेटा। हेलो, गर्ल्स कॉलेज से डू या डज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही बताया। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आपका नाम क्या बेटा? व्हाट्स योर नेम? हेलो, ये दी गॉड बी कॉम। ओके, हेलो, हेलो, थैंक यू। हेलो, 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 दिस इज हेलो, आंसर इज हेलो। डू डज। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैड का, डिड का, डू डज का या फिर वॉज वर्ब का? हेलो, हेलो मैम। हाँ जी हेलो। बताइए। मैम, एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद से हाँ बच्चा बताइए बेटा। चांदनी। मैम, आंसर इज डिड। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, सही है। द हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड इन फ्यूचर सिंपल टेंस इफ द सब्जेक्ट बिलोंग्स टू। शैल का प्रयोग हमें कौन से पर्सन के साथ में करना चाहिए, कौन से पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो शैल का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन में शैल का प्रयोग करते हैं कि सेकंड में या फिर थर्ड पर्सन में? शैल का प्रयोग कहाँ होगा बच्चों? सब्जेक्ट कौन से पर्सन से बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए, सेकंड का या कि थर्ड का? कौन बताना चाहेगा? मैम, फर्स्ट पर्सन।
Very good. What's your name? मैम चांदनी जुगानी फ्रॉम होशंगाबाद एनएमबी कॉलेज. Okay, congratulations. Very good. हेलो हेलो मैडम. हाँ, एक और क्वेश्चन ले लीजिए. ing added to the verb denotes that the tense is. अगर किसी भी टेंस में Hello, ma'am. ing, हेलो, मैम कहाँ? कंटिन्यूअस. यस, Ma'am, वेरी गुड. continuous. हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, जरा अपना बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? स्वामी विवेकानंद कॉलेज बैरसिया से मैम. वेरी गुड. ठीक है, आपको समझ में आया बच्चे अभी जो पढ़ा रहे थे? जी मैम. Okay, Yes, ma'am. thank you. In the present indefinite tense, s or es is added to the verb if the subject is. s या es कहाँ जोड़ते हैं? अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, या फिर थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मैम. हेलो. सिंगुलर. थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, शी, उसके साथ में एस या एस जोड़ते हैं. फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन विच टेंस? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन से टेंस में? एक ही टेंस है जहाँ की सेकंड. मैम सिंपल पास्ट. पास्ट सिंपल टेंस. वेरी गुड, वेरी गुड. मैम पास्ट सिंपल टेंस. ओके, वेरी गुड. चलिए, हमें लगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, इसीलिए आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट हियरिंग. और इसमें हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है. इसके अलावा भी बच्चों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप मेल करके भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हमसे फोन करके भी आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें हमसे पूछ सकते हैं. मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों का जवाब देके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम.